Assalamu alaikum. This is your host Ayman Sohail, and today we have former Pakistan captain Salman Butt on the show with us. Thank you for your time, Salman. Welcome to the show. Thank you very much for having me. Jazakallah. सलमान, आपकी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पे एक बहुत क्लोज़ नज़र रहती है और आप उसे एनालाइज़ करते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसी तरफ से स्टार्ट करूँगी। आपको जो है वो रीसेंट पास्ट में पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट का रोल दिया, लेकिन वो एक ही दिन में विदड्रॉ कर लिया गया था ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। तो आपको क्या लगता है कि पीसीबी ने उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल किया था या आपको एक फेयर चांस देना चाहिए था? Well, you have a few answers in your question, and the last thing that you said was a fair chance. So I would leave it to you people to think, okay, was it a fair chance or not? And the most important question arises that did I deserve to be a consultant or not? Or do I have the credentials or the competence to be consultant or not? I think I have, and I think most people believe that I have. If they do not if they do not proceed with that, they could not proceed with that, whatever the factors were. I think this is their loss, not mine. Alhamdulillah, I do my work properly. Wherever I do my work, people have seen the results, and I do not need to mention anything to endorse my capabilities. People know, and I am very thankful to Allah that I do my work with my whatever He has given me, with all that knowledge and everything. So I try my best, and it's up to them, because the problem is not about having somebody or not. The problem is, where are the results? Where is PCB headed? Where is Pakistan cricket headed? And what have they produced in the last 10 years or so? What results have come where we can proudly say that this is what we have won, and this is how many times we have won, this is how consistent we have been, this is how many world-class players we have produced. So, I mean, if we have the answers, then something, if it's hidden from the people, PCB can show it to them. And if they don't have anything to hide, then everybody knows what's going on. सलमान, थोड़ा सा अभी उसमें आते हैं। कल की ही एक न्यूज़ है कि वकार यूनुस इज़ ऑल सेट टू बी अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू पीसीबी चेयरमैन, और वहाँ पर जो है वो जितने भी क्रिकेट मैटर्स है, स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, एनओसीज, इन सबको ओवरलुक करेंगे। लेकिन वकार यूनुस हैज़ बिन द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद वो स्टेप डाउन कर गए थे। तो डू यू थिंक कि उनको ये चांस देना, इतना मेजर रोल देना जहाँ पे वो पीसीबी चेयरमैन के एडवाइज़र होंगे, दिस इज़ जस्टिफाइड, या किसी और को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी? देखिए अमन, वकार भाई जो है ना, मेरे कोच भी रहे हैं और दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर रहे हैं और पाकिस्तान के लेजेंड हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, एंड ही इज़ बीन अ कॉलीग ऑफ माइन, and with me, I think we have been on very good terms. So I'm not in a position to advise him with his knowledge, with his presence, and the kind of player he was. I wish him all the very best, and I really hope that this time around वो कुछ डिसीजन लें आके, वो करें जो ज़रूरी है और कर गुजरे, क्योंकि अगर वो यहाँ ना भी रहे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने रहना तो है नहीं, so at least he can go around the world doing commentary, earning a lot of money and making a good name for himself, and stay tension free above all, and take no criticism for that. लेकिन इस position में where criticism is part and parcel of this game, I think उनको चाहिए कि वो correct decisions लें, if he can take any. If he has the vision, implement it. Don't go after the people who have been there for ages, done nothing, and those are the kind of people you can't expect anything from, because they don't have a vision, they have no practical experience of how to run a cricketing organization or any sporting organization for that matter. So I think it's a huge opportunity for him, not an easy one certainly, but if he is able to take decisions, and if he is able to implement any vision that he has, I think something better might come up. But at the moment, I think because he has got a name, so what has been happening in the previous days is that जिसका नाम होता है ना, उस पे सारा कुछ डाल देते हैं, और जो पीछे से the people behind the scenes, they remain the same. They keep doing what they have been doing. They keep up messing things and creating more mess, and nobody is there to clean up. All they do is throw that mess on that person that comes in carrying some sort of name on his back. So I think whoever wants to work in the PCB needs to have a clear vision, needs to have a team which is based on merit and can implement merit.
everywhere, because the basic thing that we lack, जिसके बगैर काम होना नहीं है, वो मेरिट है। अच्छा, हम पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट दो जो है वो सीरीज़ आ रही है, एक बांग्लादेश के अगेंस्ट आ रही है टेस्ट सीरीज़ और एक इंग्लैंड के अगेंस्ट आ रही है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इज़ लैकिंग गुड क्वालिटी स्पिनर्स। हमारे पास अबरार अहमद के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिस पे हम बैंक कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से बैस बॉल को टैकल करेंगे, बांग्लादेश को खेलेंगे विद हैविंग लाइक नॉट अ लॉट ऑफ स्पिनर्स? आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? I have a question in your answer, and the question is that do we prioritize Test cricket? हमें अचानक इतनी फिक्र क्यों हो गई है कि हमारा क्या बनेगा? हम तो खेलना ही नहीं चाहते। Our boys don't play first class cricket regularly. We are the only cricket board in the world जो दुनिया को कहता है यार 2 टेस्ट मैच है ना तो एक रहने दो, उसकी जगह 2 T20 दे दो। तो when your love for this bigger format is, you know, deteriorated for a long time and it's close to being nowhere, you know, तो फिर इतनी फिक्र क्यों है कि अब क्या होगा? इतने सालों से why haven't you prepared for that? और वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल है ये तो नॉन स्टॉप चलती है। तो हमने तो अभी भी साउथ अफ्रीका से ट्राई किया है, हमारा जो टेस्ट मैच है उसकी जगह हमें T20 मिल जाए। तो हमारी तो प्रायोरिटीज ही नहीं है करेक्ट। तो why are we worried? और हमने उसके लिए प्रिपेयर क्या किया? अगर हमने बच्चों को T20 क्रिकेट खिलानी है और हर जगह इमर्जिंग बच्चे घुसाने हैं और हर जगह T20 के ऊपर जोर देना है, तो टेंशन कैसी? फिर जो है यही है आपके पास। आप तो राइट पाथ पे ही नहीं है प्रेपरेशंस के। ना आपने आज तक अपने कोच से पूछा है, ना आपने पॉलिसी मेकर से पूछा है। एंड टॉकिंग अबाउट क्रेडेंशियल्स एंड मैकेनिज्म, देयर इज नन। आप किस बेस के ऊपर किसी को लाते हैं? डू यू हैव अ रिटन पीस ऑफ पेपर जो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे बंदा आएगा? और जब वो आता है बगैर किसी वजह के तो वो जाता भी बगैर किसी वजह के है। तो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो व्हाई, व्हाट इज द वरी अबाउट? उन्होंने हर दफा यही करते हैं, एक ऐसा बंदा लेकर आते हैं जो वैसे ही कमजोर होता है, जिसके क्रेडेंशियल नहीं होते, जिसकी प्रेपरेशन नहीं होती, जिसका प्रैक्टिकल काम कोई नहीं होता दिखाने के लिए, और उसी पे सारा कुछ थोप देते हैं और फिर कहते हैं देखो जी ये क्रिकेटर्स क्या करते हैं। तो बेसिकली ये एक सोची समझी कह लें कि एक प्लानिंग के तहत ये ढूंढा जाता है कमजोर बंदा, अंगूठे लगाने वाला, सिग्नेचर कर देने वाला, सो के उठ के बगैर कागज पड़े जो साइन कर देते हैं, इनको वो वाले लोग चाहिए होते हैं। So Vicar bhai has the opportunity. If he can stamp his authority and do what is necessary, he might do Pakistan cricket some favor, but only time will tell. बट आपको जैसे क्या लगता है कि स्पिनिंग में जैसे शादाब है हमारे पास, तो हमको ऑल राउंडर के तौर पर उनको लाया जा सकता है स्क्वाड में? 4 ओवर तो उनसे हो नहीं रहे हैं कहीं पे, एक ओवर भी एक जगह पर नहीं होता। इब्रार को हमने वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं खिलाया, ठीक है, और इब्रार भी कोई ऐसा स्पिनर नहीं है who can run through teams. He is no Shane Warne, he is no Abdul Qadir or you know Saqlain Mushtaq. Because हमने प्रिपेयर ही नहीं किया ना। हम बच्चों से क्या दुख करे, शादाब से क्या दुख करना बेचारे से, या इससे इब्रार से, इनकी अपॉर्चुनिटीज किधर है? Why we haven't made them play first class cricket? हमारी ये टीम क्यों नहीं टूवर्स करती? रोद होके वही बांग्लादेश, रोद होके श्रीलंका, इससे आगे पहुंच ही नहीं है। जबकि जो टॉप नेशंस हैं वो तो आपस में खेले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वो कॉन्स्टेंटली ए और अंडर 19 की क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तक कि अभी श्रीलंका की टीम भी अंडर 19 की इंग्लैंड में टूर कर रही थी और लंबी क्रिकेट खेली उन्होंने उधर। हम अपने बच्चों को क्या एक्सपोजर देते हैं? तो जब एक्सपोजर देना नहीं, साल में अंडर 19 का सीजन होता है 1.5 माह का, और उसके बाद 11 माह बच्चे फारिग, ना कोई टूर ना कोई बात। इसी तरह अंडर 16-17 का टूर्नामेंट होता है, महीने का टूर्नामेंट नहीं है, उसके बाद बच्चे पूरा साल फारिग। तो ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलती। पूछे ना अपने ऑर्गेनाइजर से, जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने टूर्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं, कि क्यों नहीं बच्चों के टूर हुए पिछले 8-10 सालों में? कितने टूर किए आपने? और अब आकर जब क्रिटिसिज्म हुआ है तो अरेंज क्या किया आपने? फिर वही बांग्लादेश, फिर वही श्रीलंका। क्यों आपकी बात नहीं होती? कोई बात नहीं सुनता आपके टॉप लेवल पे? एंड इफ यू डू नॉट क्वालिफाई टू बी देयर, यू नो, यू शुड हैव द हार्ट टू से ओके फाइन, गेट अ गुड पर्सन इन, कि भाई मेरी काबिलियत नहीं है। लेकिन हर बंदा जो है वो कुर्सी से चिपका हुआ है। सो क्या कह सकते हैं? अच्छा, अगर हम सिर्फ एक जनरल स्ट्रैटेजी की बात करें बांग्लादेश या इंग्लैंड के लिए, तो पाकिस्तान को स्पिनर्स तो है ही नहीं हमारे पास। तो अगर हम फास्ट बॉलर के साथ भी जाते हैं तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड भी फिर वही अप्रोच लेगा, वैसे ही हम पिचेस बनाएंगे। तो फिर आपको लगता है कि पाकिस्तानी बैटर्स इतने केपेबल हैं कि वो एटकिंसन या मार्क वुड इन लोगों को टैकल कर लेंगे? देखिए, अगर हम प्री इवेंट अश्योरिटीज मांगेंगे ना तो देयर आर नन, ठीक है ना, कोई भी नहीं है।
So you have to take that calculated risk. There is always an element of risk before the big achievement arrives. So आपने ये देखना है कि आप किस जगह पर बेस्ट चांस है आपका. I think you have medium fast bowlers. You do not have genuine pace in Test cricket. ठीक है, so you can probably go with green pitches. अब जब आप ग्रीन पिच बनाते हैं तो आपके बैट्समैनों को टेंशन शुरू हो जाती है. जब आप स्पिन पिच बनाएंगे तो आपको इंग्लैंड के स्पिनर से टेंशन शुरू हो जाएगी. जब आप तेज विकेट बनाएंगे तो आपको उनके फास्ट बॉलर से. तो जब इतनी टेंशन है तो फिर सुलह ही कर लें, फिर तो मैच वाली बात रहती ही नहीं है. सो देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट्स जिसने आपको निकालना है. ठीक है, सो आई मीन प्रोड्यूस पिचेस जहां पर बॉलर बैट्समैन का इक्वल चांस हो एंड फाइट इट आउट. आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों इवेंचुअली ठीक हो जाएंगे. लेकिन अगर आप डरते भी रहेंगे, डर डर के काम करेंगे तो आप हारते भी रहेंगे, जलील भी होते रहेंगे और इंप्रूव भी कुछ नहीं होना. सो डरना बंद करें. अभी जो है वो पाकिस्तान शाहीन्स का टूर चल रहा है और उसमें जो है मोहम्मद हुरैरा ने डबल सेंचुरी स्कोर किया है. आपको लगता है कि उनको चांस देना चाहिए बांग्लादेश या इंग्लैंड के अगेंस्ट? देखिए, स्कोरिंग इन डोमेस्टिक एंड ए टीम आपको रिकग्निशन में ले आती है. सो यू आर द नेक्स्ट इन लाइन, बट दैट डज नॉट मीन कि स्ट्रेट अवे यू आर गारंटीड अ प्लेस. क्योंकि ऊपर वाले जब सही कर रहे हो तो फिर कैसे चांस मिलेगा, चाहे नीचे आप जो मर्जी करते रहें. So it is good that he is scoring. He is definitely the next in line. But then you have people like Abdullah Shafiq scoring runs, Imamul Haq scoring runs, other openers scoring runs. तो अगर उनमें से कोई फॉर्म में नहीं है, शान मसूद कैप्टन आपका ओपनर है, one of your best players. So it's not an easy place to be in. So I think कि अच्छा है टीम को engage रखें और जहां मौका मिलेगा हुरैरा खेलेगा because he is very good. He's been scoring runs. बट हमारे यहाँ जो होता है ना, यार उसने 100-200 कर दिया, इसको खिला दो. ये बचकाना अप्रोच है, नॉन प्रोफेशनल, वेरी क्राउडिश. तो क्राउड्स डू नॉट डिटरमिन. ये कोई इलेक्शन नहीं है कि जो वोट पे लोग आ जाए आगे. इसमें आपकी जगह जो है ना वो एज प्रोफेशनल, इफ देयर इज देयर इज, इफ देयर इजंट देयर इजंट. यू नो, देयर इज नो हैव टू, देयर इज नो हैव टूज. थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट से शिफ्ट करके मैं टी20 क्रिकेट पर आऊँगी. टी20 वर्ल्ड कप हुआ अभी रिसेंटली, पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 तक भी नहीं जा सका. एज अ कैप्टन बाबर आजम की परफॉर्मेंस को, कैप्टनसी को कैसे इवैल्यूएट करेंगे और क्या उनको अब कंटिन्यू करना चाहिए इतने बड़े जो है वो डिसअपॉइंटमेंट के बाद? Okay, let's first talk about what Babar Azam has at hand. He had a lot of problems. I am not trying to defend his captaincy, neither will I. मेरा उसकी कप्तानी के बारे में क्या ख्याल है? I think there are close to 100 videos in the last 3 years जो आप देख सकते हैं, and you will know what I think about him as a leader. ठीक है, he's not a born leader. लेकिन मसला ये है कि आपने उसको कंट्रीब्यूट क्या किया उसकी आसानी के लिए. आप 2 बंदे ऐसे उठा के अंदर लाए जिन्होंने उसको टीवी पे पूरा उड़ाया, पूरा उन्होंने उसको उड़ाया बैठ के. आपने उसको क्या मैसेज दिया? उसके बाद आपने एक कप्तान बदला, 2 सीरीज बाद वो कप्तान बदल लिया. आप तो खुद टीम के अंदर कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं. ये कोई वो छोटे बच्चे नहीं है जिनको बांट के कहा चलो इकट्ठे बैठो, यहाँ पे बैठ के खाना खाओ तो सब ठीक हो गया. दीज आर नॉट किड्स, दीज आर प्रोफेशनल ग्रोन अप बॉयज. ठीक है, और दुनिया में उनके नाम है. दे हैव देयर ओन स्ट्रॉन्ग बिलीव्स. उसमें फिर आपको एज मैन मैनेजमेंट यू नीड टू हैव पीपल हु आर प्रोफेशनल्स. आप उनकी मैनेजमेंट किनसे करा रहे हैं जिनसे अपना आप मैनेज नहीं हुआ सारी जिंदगी में? तो you need to have people with them और people who make decisions for them जो कि जिनका विजन हो. आपने ज्यादती की उसके साथ. ठीक है वो बहुत अच्छे कप्तान नहीं है, लेकिन आपने को उसको आइडियल प्रिपरेशन भी नहीं दी एंड एज अ रिजल्ट यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर. ठीक है, आपकी फिटनेस स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज थे, आपके स्किल लेवल्स कॉम्प्रोमाइज थे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ कोई नहीं थी. एक बंदा आपने दुबई से उठाया खिला दिया, 2 बंदे टीवी पे काम कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान से वो खेलने से रिटायरमेंट ले ली थी. यू आस्क्ड देम टू कम इन, दे केम, दे डिड व्हाट दे हैड टू डू. आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, इमाद डिड नॉट हैव अ ग्रेट टाइम बट वाज ऑलराइट. बट प्रॉब्लम इज कि जब आपको 2 बंदे पुराने लाने पड़े, एक आपको दुबई से लेना पड़े, फिटनेस के टेस्ट आप ना लें क्योंकि लड़का ना कम हो जाए, इसका मतलब है आपके पास मटेरियल नहीं है. सो द क्वेश्चन मार्क कम्स बैक टू योर सिस्टम एंड द पीपल रनिंग द सिस्टम कि भाई लड़के किधर हैं, प्लेयर क्यों नहीं है? तो ये पूछे ना जाके वो 6 टीमों वालों से, ये पूछे उन कोचों से. जब 6 हो जाती हैं तो कहते हैं बेस्ट सिस्टम है, जब 12 हो जाती हैं तो कहते हैं ये भी बेस्ट सिस्टम है. उनके लिए हर चीज ही बेस्ट है. ठीक है, तो जिन लोगों का ना कोई ओपिनियन हो, ना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, ना वो किसी एक
चीज को पकड़ पे उस पर काम करते हो, वो बस सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले इकट्ठे हुए हों, तो वहाँ ऐसी जगहों पे प्रोग्रेसेस नहीं होती, ऐसी जगहों पे लोगों की ग्रोथ नहीं होती। और पाकिस्तान का एग्जैक्टली यही मसला है। जो टैलेंट अल्लाह की तरफ से इस मुल्क में बहुत है, लेकिन पाथवेज जो है ना, वहां पे काम खराब है। वहां पे हम बच्चों को मिसलीड करते हैं, गलत क्रिकेट डाउनलोड करते हैं उनके दिमागों में। और ये T20 ने जो है ना आपकी टेक्निकल जड़ें काट के रख दी। योर बॉयज आर नॉट टेक्निकली इक्विप्ड एंड दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ द गेम। बिल्कुल टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली हम लोग ब्लंडर मारते हैं। और मैं आपको पिछले 4-5 साल के ना फिंगर टिप्स पे आपको ब्लंडर्स बता सकता हूँ जहां जहां पाकिस्तान ने की, और एक नहीं हर बंदे ने की है। लेकिन ठीक है, सारे खुश हैं तो सारे रले हुए ना, तो ठीक है, एंजॉय करने दें। अभी जो वाइट बॉल कैप्टनसी है दैट इज़ लाइक हैंगिंग इन द बैलेंस, आपको लगता है कि कोई ऐसा आइडियल कैंडिडेट आपकी नज़र में जिसको वाइट बॉल कैप्टनसी देनी चाहिए? क्योंकि फ़खर जमान का नाम भी बहुत सामने आ रहा है। एक एक करके ना पूरी टीम को कप्तान बना दें, ताकि हर एक अपने 2-2 बंदे लेके शाम को बैठा हो। यही मसला है यहाँ पर। हर बंदे को लगता है कि हर दूसरा बंदा कप्तान है। ये जो कप्तान होता है ना, नंबर 1 ये कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं। नॉट एवरीबडी कैन लीड अ साइड, ठीक है। बट इन पाकिस्तान क्या है, ये पहले से खेल रहा है, ये सीनियर है, इसको बना दो, ये बड़ा ऐसे है, इसको बना दो, इसने स्कोर किया, इसको बना दो। इनमें से कोई भी क्रिकेट की ये जो बातें हैं ना, इनमें से कोई क्रेडेंशियल लीडरशिप का नहीं है। लीडरशिप जो है ना, उसकी नेचुरल फॉलोइंग होती है, उसकी बात में असर होता है, वो वेट कैरी करती है। एंड ही इज अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ पीपल अराउंड हिम। इसलिए वो स्ट्रेटेजी बनाने के काबिल होता है, क्योंकि वो आगे सोच रहा होता है। उन ग्राउंड्स के ऊपर तो मुझे कोई बंदा बात करता नजर ही नहीं आता। Thank you so much for your time, Salman. Stay tuned for more interesting conversations ahead. Allah Hafiz.